ममता बनर्जी को जूनियर डॉक्टरों का अल्टीमेटम, अभी खत्म नहीं होगा प्रदर्शन। ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी गिड़गिड़ाए। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के एक दिन बाद भी आंदोलनकारी डॉक्टरों ने अब अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी से मिलने के बाद, सारी बातें हो जाने के बाद भी अब डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है कि जब तक उनकी पूरी मांगे मानी नहीं जाती है, 5 मांगे जो उन्होंने रखी है, उन 5 मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और डॉक्टरों का ये फैसला ममता बनर्जी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। बता दें आपको कि ममता सरकार ने उनकी 3 मांगे मान ली थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो अभी काम पर वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने 5 मांगे रखी है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की मांगों को मानते हुए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाकर उनकी जगह मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त किया। सरकार ने इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सरकार के इस कदम को अपने आंदोलन की जीत तक करार दे दिया और इसके बाद डॉक्टर राज्य के स्वास्थ्य सचिव NS निगम को हटाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। आंदोलनकारी डॉक्टरों द्वारा मुख्य सचिव मनोज पंत को एक ईमेल लिखकर दिन के बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक और बैठक की मांग की जाने की उम्मीद जताई। इस बैठक में अस्पताल परिसर के भीतर डॉक्टरों की सुरक्षा पर चर्चा, डॉक्टरों की सुरक्षा कड़ी करने के लिए आवंटित 100 करोड़ की राशि का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की मांग की गई। क्या कुछ कह रही है जूनियर डॉक्टर्स, क्या थी उनकी मांगे और क्यों अभी भी वो प्रदर्शन खत्म नहीं करना चाहते हैं, सुनिए उनकी जुबानी। आज 39 दिन অতিবাহিত হয়েছে। আজ আন্দোলনের আর 5 দফা দাবি স্বচ্ছতা এই দীর্ঘ বিষয়ে বহু অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগ্রস্ত ব্যবহারের চেষ্টা, বিচার নয়, চেয়ার মিথ্যের অভিযোগ, ইমেল, অডিও ক্লিপ নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং আমাদের আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। গতকাল আপনারা যেমন জানেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের সুদীর্ঘ আলোচনা হয় 5 দফা দাবিকে সামনে রেখে। সেখান থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিশ্রুতি তার দিক থেকে উঠে আসেন, তার বাস্তবায়িত রূপ আজ আমরা দেখতে পাই। আমরা খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছি, অভয়ার ন্যায় বিচারের পথে যে বাধাগুলি ক্রমাগত এসছে এবং যার জন্য জাস্টিস আসতে এতটা দেরি হচ্ছে, ঠিক সেই কারণে আমরা সিপি, ডিসিপি নর্থ, ডিসিপি সেন্ট্রাল, DSH এবং DME এই 6 জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি রেখেছিলাম। আমাদের আন্দোলনের চাপে তাদেরকে সরাতে বাধ্য হয়েছেন। এটা আন্দোলনের আংশিক জয় বলে আমরা মনে করি। কিন্তু প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রসঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত এই মিটিংয়ে নেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে সদর্থক মৌখিক আশ্বাস দিলেও এ সম্বন্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া এখনো আমরা দেখতে পাইনি। সুরক্ষা বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত পদক্ষেপ আজ সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের অপরাজিতা আইনের আড়ালে যে নারী বিদ্বেষ ও মধ্যযুগের মানসিকতা লুকিয়ে রয়েছে তা সুপ্রিম কোর্টের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। রাত্রি ডিউটি না দিয়ে দিনে 12 ঘন্টার কম ডিউটি এবং তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদের যে সৃষ্টি, তা আমরা মনে করি মহিলাদের সুরক্ষার পরিপন্থী এবং এই বিধান অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। রাজ্যের সুরক্ষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পদক্ষেপ এবং 7 দিনের ট্রেনিং এর সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করা নিয়েও একেবারেই উপযুক্ত নয় তা আমরা মনে করি এবং যা সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্পষ্টতই এসছে। এবং 100 কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা শুনিয়ে হাসপাতাল নিরাপত্তার যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে, তারও কোনো খতিয়ান রাজ্য দিতে পারেনি। আমরা আমাদের 4 নম্বর দাবিতে আগেই বলেছিলাম, রোগী স্বার্থ তথা স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত না করা গেলে শুধুমাত্র নিরাপত্তা বাড়িয়ে হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আমরা সেই জায়গা থেকেই কেন্দ্রীয় রেফারেল ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, যথাযথ সংখ্যাতে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী জিডিএ নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, সমস্ত সিঙ্গেল পিক ব্যবস্থা চালু করা, পেশেন্ট কাউন্সিলিং এবং প্রফেশনাল কাউন্সিলিং নিয়োগ করার সহ একগুচ্ছ দাবি আগের মিটিংয়ে আমরা রেখেছিলাম। হাসপাতালগুলিতে বেড নিয়ে দুর্নীতি, জীবনদায়ী ওষুধ পাওয়ার যে সমস্যা, সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন এগুলির সম্মুখীন হতে হয়।
আমরা সুরাহা চাই এই সমস্ত সমস্যা, নিরাপত্তা সহ এই সমস্ত দাবিগুলিকে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে লাগু করার জন্য আমরা কলেজ ভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠনের দাবি জানিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। অথচ এই বিষয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে শুধুমাত্র একটি রাজ্য স্তরের টাস্কফোর্স গঠনের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। কি করে এই দাবিগুলো পূরণ হবে, কিভাবে টাস্কফোর্স মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালগুলির বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটাবে তা এখনো আমাদের কাছে অস্পষ্ট। আমরা চাই অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন করার নোটিশ জারি করা হোক এবং তত্ত্বাবধানে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্তরে কলেজ ভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন করার এবং তাতে জুনিয়র ডাক্তারদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। আমরা 5 নম্বর দাবিতে উল্লেখ করেছিলাম কলেজে কলেজে ভয়ের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিহত করতে গেলে ছাত্রছাত্রী ইউনিয়ন এবং কলেজে কলেজে RD রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন সুনিশ্চিত করতে হবে। আমাদের অবস্থান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মৌখিকভাবে রোগী কল্যাণ সমিতিগুলিকে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করলেও তা বাস্তবায়িত রূপ আমরা এখনো দেখতে পাইনি। কিভাবে নতুন করে এই সমিতিগুলোকে গঠন করা হবে তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। আমরা প্রতিটি মেডিকেল কলেজে রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের আইনে স্বীকৃত এখনো পাইনি। আমরা দ্রুত এই দাবিগুলি পূরণের দাবি জানাচ্ছি। আমরা চাইছি দ্রুত রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে পদক্ষেপ করে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের উপরিক্ত দাবিগুলি পূরণ করা হোক। আমরা কাজে ফিরতে চাই। আমরা চাই অতি দ্রুততার সাথে এই অচল অবস্থাটা। অবস্থান কি তুলনা হবে আমাদের যে চতুর্থ এবং পঞ্চম যে দাবি ছিল এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সম্বন্ধে আমাদের যে দাবি ছিল সেই দাবিগুলো নিয়ে আমরা আলোচনায় বসতে চাই এবং সেফটি সিকিউরিটি প্রশ্নে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আজ যেভাবে আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়েছে আমরা মনে করি এই দাবি নিয়ে এবং আমাদের পঞ্চম দফার যে দাবি ছিল যেখানে আমরা চেয়েছিলাম যে দ্বিতীয় অভয়ার ঘটনা যাতে না হয় সেই পরিস্থিতি কলেজ ক্যাম্পাসগুলোকে সুনিশ্চিত করতে হলে কলেজে কলেজে গণতান্ত্রিক পরিসরটাকে আরো বৃহত্তর করতে হবে। আমরা মনে করি এই দাবিগুলিতে আমাদের রাজ্য সরকারের সাথে বসার প্রয়োজন আছে। সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি অতি দ্রুততার সাথে এই বসার আলোচনা করা হোক, যাতে আপনি যে প্রশ্ন করলেন সেই জায়গা থেকে আমরা অতি দ্রুততার সাথে কাজে ফিরতে পারি এবং সদর্থক ভূমিকা আমাদের দিক থেকে আমরা পালন করতে পারি। আমাদের দিক থেকে আমরা একটা ইনিশিয়েটিভের কথা ভাবছি এবং কাল সকালের মধ্যে, রাত্রে করলে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তাই কাল সকালের মধ্যে আমরা আমাদের যা সুলিখিত এবং সুপত্র দাবি দেওয়া চতুর্থ এবং পঞ্চম দাবি এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্রশ্নে আমাদের যা অবস্থান সেগুলো নিয়ে দাবি সম্বলিত আমরা একটা দাবিপত্র পাঠাবো। आज आंदोलन को 39वें दिन पूरे हुए। आज जहां पे इस बात की बहुत थोड़ी सी खुशी है हमें कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपने पद से हटाया गया, DME DHS को भी अपने पद से हटाया गया। उसके साथ साथ WBJDF वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव नहीं किया गया। पहला ये डिसएग्रीमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने के लिए, हमारा ये मानना था और हमने मैडम के सामने इस बात को सिद्ध भी किया था कि स्वास्थ्य भवन जो करप्शन की एक जगह बन चुकी थी उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद की तरफ से पूरे रूप से नजरअंदाज किया गया या जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये भी हमने मैडम को बताया। दूसरी जो हमारा 4th डिमांड और 5th डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो थ्रेड कल्चर हर मेडिकल कॉलेज में अब भी है, जिन जिन लोगों ने थ्रेड कल्चर को बढ़ावा दिया वो अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन जिन लोगों ने शुरुआत में जब हम आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने आकर लोगों को डराया धमकाया, वो अब भी मेडिकल कॉलेजेस में खुलेआम घूम रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो वहां पर इस बात को सिद्ध किया गया कि थ्रेड कल्चर के कारण ही स्टूडेंट्स डॉक्टर्स अपने काम पर वापस नहीं ले जा पा रहे हैं। थ्रेड कल्चर के कारण ही
अभया जैसी दुर्घटना हुई है। इसलिए हमारा अनुरोध है लोगों तक कि आप थ्रेट कल्चर जो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पर, उसको बहुत गंभीरता से आप समझें और जो हम बताना चाह रहे हैं उसको भी गहराई से समझें और इस मूवमेंट में हमारे साथ जुड़े। इसके साथ ही साथ ये थ्रेट कल्चर जो बनाया गया वो इस माध्यम से बनाया गया कि काउंसिल या रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जो भी थे पहले यहाँ पर, जो काउंसिल थे, उनके जो नेता या जो भी प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते थे वो हम पर थोप दिया जाता था। उनके तरफ से बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं कि वो किसी न किसी तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते थे। हम चाहते हैं कि रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट काउंसिल जो यूजी के लिए है वो उसका गठन हो। इसको लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर बहुत लंबी आलोचना भी हुई, लेकिन हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए। हम वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि ये रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो डेमोक्रेटिक तरीके से, इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ सके, ताकि अगर कोई फ्यूचर में दूसरी बार ये अभया का कोई भी ऐसी वारदात दोबारा ना हो पाए। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज 39वें दिन भी आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर देख सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। हर एक मेडिकल कॉलेज में ना ही अभी तक टॉयलेट का इंतजाम हुआ है, ना ही फीमेल या मेल रेसिडेंट रूम रेस्ट करने के लिए रातों में उसे बनाया गया है। सीसीटीवी नाम के लिए लगाए गए हैं। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि दोबारा काम करने जाने की हिम्मत नहीं है। तो ये बहुत संवेदनशील एक बात है जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई कि किस तरह से एक डॉक्टर जो 36 घंटे काम करता हो, उसके लिए रहने की जगह नहीं हो, तो वो किस तरह से काम पर लौट जा सकता है। इसके बारे में हमने सवाल उठाया और आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया कि अब भी 40 दिन जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो अब भी 15 दिन का वक्त मांगा जा रहा है कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं। क्या कलकत्ता जैसे शहर में जहां पर इतनी सारी सुविधाएं हैं, या दूसरे दूर दराज के शहरों में जहां पर डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं, उन्हें क्या इतनी सुविधा का भी हक नहीं? क्या उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी का हक नहीं? इसमें इतनी देरी क्यों? ये आंदोलन और ये मंच जो हमने यहाँ पर शास्त्री भवन के सामने हमने धरना दिया है, ये हमारे 5 डिमांड के साथ मिलता है। जस्टिस फॉर अभया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। आज भी जस्टिस का हमें रास्ता दिखता हुआ नजर नहीं आता। इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई है उसमें कुछ बातें खुल के आई है, बट अब भी बहुत कुछ आना बाकी है। और हम ये चाहते हैं कि दोबारा कोई गरीब घर का बच्चा या किसी के भी घर का बच्चा या लड़की या लड़का अगर वो कभी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है और वो वहां पर पढ़ना चाहता है, तो कभी उसे इस बात का डर ना हो कि वो जाकर मेडिकल कॉलेज में रात में रेप या मर्डर जैसी चीज से डरे। हमारा डिमांड यहाँ पर यही है और लोगों के सामने भी अनुरोध है कि आप और भी भारी नंबरों में हमारे इस धरना मंच पर आइए और हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि कल को अगर आपका कोई घर का डॉक्टर बने या यूं ही कोई भी अगर आपके घर के लड़का या लड़की या बेटी के साथ ऐसा कोई हादसा हो, हम ये नहीं चाहते। ये मूवमेंट जितना ही मेडिकल कॉलेज को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, उतना ही ये सोशल चेंज भी हर दिन लाता हुआ नजर आता है। इस मूवमेंट को आज तो क्या अगले कई महीनों तक कहीं भी रोकने की जरूरत नहीं है, जब तक हम इस बात का आश्वासन न पालें कि हमने एक चेंज ला पाए हैं जिसमें हर कोई सुनिश्चित हो इस बात का कि सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी हो। हमारा जस्टिस इसीलिए है, हम जस्टिस जितना कोर्ट में चाहते हैं उतना सोसाइटी में भी चाहते हैं। इसके साथ जो डॉक्टर साथी की बात की गई कोर्ट में, वो भी उस बात की भी हम कड़ी निंदा करते हैं कि एक लड़का या लड़की को बराबर काम करने का हक होना चाहिए। तो हमारा कोर्ट और फाइट डिमांड और जस्टिस का डिमांड और सिक्योरिटी, सेफ्टी और
स्टूडेंट बॉडी का इलेक्शन ये हम चाहते हैं कि हो, और इसके लिए हम जिस तरह से भी हो सके इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे, और जिस तरह से भी हो सके हम अथॉरिटीज से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकले, हम सेफ महसूस करें और काम पर जल्द से जल्द वापस जाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नहीं, अभी जो हमारा डिमांड माना गया है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए मिनट्स में, वहां पर अग्रीमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट भी है। तो डिसएग्रीमेंट जो है, हम लोग स्वास्थ्य भवन पर आए थे, हमारा जो डिमांड था ये सब भी था, और स्वास्थ्य भवन को पूरा साफ करने का भी था। ये जो 5 डिमांड के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्वास्थ्य भवन के सबसे ऊंचे पद पे है, जो स्वास्थ्य भवन में जो अब तक जो चलता आ रहा है उसको हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सक्षम रूप से साफ हो, ताकि मेडिकल एजुकेशन जो है वो प्यूरिफाई हो। और कल को हमारे जो जूनियर्स, जो छोटे डॉक्टर्स आज जो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो जब आए तो उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले। और इसके साथ साथ जो काउंसिल और रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का बॉडी जो इलेक्टिव हो और डेमोक्रेटिक हो, ताकि कोई भी कभी ये आकर हिम्मत ना कर सके एक मेडिकल कॉलेज में कि उसको फेल कर दिया जाएगा अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा। ये थ्रेट कल्चर हम एंड चाहते हैं, और इसके साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं, अभी तक जमीनी हकीकत बहुत दूर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें और बैठक के लिए बुलाया जाए, ताकि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ स्वास्थ्य भवन के सामने बैठे हुए हैं, इसको हम सुनिश्चित कर अगर हमारा डिस्कशन और तालमेल हो जाता है तो हम डेफिनेटली काम पर जाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से हमेशा ही बात करने का दरवाजा पहले भी खुला था, अब भी खुला है, और हम मिलना चाहेंगे ताकि हमारा जो जल्द से जल्द इस पर सॉल्यूशन आ सके और हम काम तक वापस जा सके। कल आप लोग क्या करेंगे? कल हम लोग आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल, और रिस्पांस का इंतजार करेंगे। उसके बाद आप लोग को डिटेल्स बताया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे हैं वो पूरी होगी तभी वो प्रदर्शन स्थल जो है छोड़ेंगे। डॉक्टरों ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेजों में गठित टास्क फोर्स के बारे में सूचना देने की मांग की। राज्य सरकार ने गोयल की जगह वर्मा को नया शहर पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। बैठक के दौरान बनर्जी द्वारा किए गए वादे के अनुसार DHS देवाशीष हल्दा, चिकित्सक शिक्षा निदेशक DME कौस्तव नायक और कोलकाता पुलिस के उत्तरी प्रभाग के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता को भी हटा दिया गया। अब ऐसे में आज भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन जारी रखा और कहा कि अभी आधी जीत है। हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम का इस्तीफा जरूरी है। अस्पतालों में जो है ग्रेट कल्चर खत्म करने की मांग की गई और अभी इसे नहीं माना गया है। CM से एक और मीटिंग की मांग भी की गई है। मनोज पंत को लिखे ईमेल में डॉक्टर ने यह भी कहा, पिछली बैठक में मांगों के चौथे और 5वें पॉइंट पर चर्चा पूरी नहीं हुई। अस्पतालों की सुरक्षा से ये मामले जुड़े हुए हैं। CM ने टास्क फोर्स बनाने की बात कही। हम चाहते हैं कि आज की मीटिंग में टास्क फोर्स के सदस्य भी हो। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बावजूद अब ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी भी अब ममता बनर्जी के बाद डॉक्टरों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और ये कह रही हैं कि हड़ताल को वो खत्म कर लेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए चिकित्सकों से खास अपील की और कहा कि सरकार ने हड़ताली चिकित्सकों की मांग मान ली है, इसलिए उन्हें हड़ताल वापस लेने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैंने पहले दिन से ही चिकित्सकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का समर्थन किया। मैंने हमेशा ये माना कि प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगों को छोड़कर उनकी अधिकांश चिंता सही होने के साथ समझदारीपूर्ण और न्यायोचित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों के अनुसार चिकित्सकों की सुरक्षा में सुधार के लिए अधिकांश उपाय प्रगति पर हैं। इन उपायों में पूरी पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के CCTV कैमरे लगाना, बुनियादी ढांचागत विकास शामिल है। यह कार्य 14 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार के स्वास्थ्य विभाग और कोलकाता पुलिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों के तबादले की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि भी एक दिन पहले ही CM ने अपने मीडिया संबोधन में किया था। उन्होंने चिकित्सकों से हड़ताल वापस लेने की अपील करते हुए लिखा कि चिकित्सकों को अब सिद्धारा के तहत हड़ताल वापस लेने, लोगों की सेवा करने के लिए बंगाल की सरकार के साथ मिलकर काम करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही सरकार की ओर से किए जा रहे इन परिवर्तनों को तुरंत क्रियान्वित करने के लिए टास्क फोर्स की पहलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर विचार करना चाहिए। अंत में
इतना ही कहूंगा कि सीबीआई को जवाबदेह ठहराना और ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी अपराधी बच ना पाए, उन्हें जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। सीबीआई का रिकॉर्ड खुद ही सब कुछ बताता है। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी एक भी जांच पूरी नहीं की। न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने के बराबर है। अब कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो अभिषेक बैनर्जी भी बात मान रही है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा से डॉक्टरों के जो भी फैसले रहे हैं, डॉक्टर का हमेशा समर्थन किया है। तो अब वो कह रही है कि हड़ताल को जो है वो अब आप रोक दीजिए। अब समय आ चुका है कि हड़ताल पर रोक लगनी चाहिए। आप लोग वापस लौटिए अपने काम पर, अपने काम को करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की थी इस मामले पर तो उन्होंने डॉक्टरों की चिंता को सामने रखा था। सरकार ने उनकी बातें मानी थी। अब 5 मांग है। जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।